Hello everyone, and welcome to today's lesson. I hope you are ready to explore something interesting today. In this video, we'll cover the case laws regarding our fundamental rights from Article 12 to 32. In this video, we'll see how the case laws have been evolving and how the fundamental rights have been expanded through judicial interpretations. In my previous video, I covered all the articles of fundamental rights and we didn't focused on the case laws. But as we are law students and we have taken law as optional in our UPSC, and those who are even non-law background, they also need to know some of the cases as per their article in our constitution. You need to know how the case laws have been the helping hand in evolving and expanding the scope of certain articles. So case law is very important. This video primarily focuses on the case laws. I'll give you 2 to 3 case laws on each article. I'll explain everything regarding what are the issues, what was held, what is the significance of that case law on that article. So this video is really important. If you have covered the fundamental rights part 1, this is the part 2 covering the case laws. So please focus and see how the case laws are to be addressed and what impact they have given on our constitutional law and what impact fundamental rights have gotten from that. So starting with our lecture 5, that is fundamental rights 12 to 35 case laws. So the first article is Article 12, that is definition of the state. Our first case is Rajasthan State Electricity Board versus Mohan Lal 1967. So here in this case the issue was that whether Rajasthan State Electricity Board is a statutory body created under Electricity Supply Act 1948. So whether this statutory body could be considered as a state under Article 12 of Indian Constitution or not. So this was the question, and what was held that yes, as it performs governmental functions, we can say that it is the state, it comes under the definition of Article 12. So the Supreme Court held that Rajasthan State Electricity Board qualifies the definition which is given under Article 12. और ऐसा क्यों है? Because it is created by a statute. तो ये statutory body हो गई, इसके पास power है to make regulations और ये public को उन regulations या उन functions से उनको एक तरह से एनफोर्स कर सकती है. तो कोर्ट का ये एम्फेसिस था दैट स्टैट्यूटरी बॉडीज जिनके पास गवर्नमेंटल कंट्रोल है और पब्लिक ड्यूटीज़, जो भी पब्लिक ड्यूटीज़ हैं वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर अगर फॉल कर रही हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हम उसको एक तरह से स्टेट के अंदर ही मानेंगे. तो यहाँ पे जो आर्टिकल 12 है उसका स्कोप बढ़ा दिया गया था और ये इंश्योर किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स कुड बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट सच बॉडीज़. क्योंकि अगर मान लो इस बॉडी की वजह से कोई भी हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो इसको हम आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा इन्फ्रिंज्ड है तो हम 32 यूज़ करते हुए कोर्ट में जा सकते हैं. तो यहाँ पे आर्टिकल 12 का देखा जाए तो एक तरह से एक्सपेंशन हुआ था. Next comes the other case, which is Ajay Hasia versus Khalid Mujib 1981. The main issue under this case was that whether a society registered under the Societies Registration Act, which managed an engineering college, could be considered as a state under Article 12 of the Constitution or not. तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी, अब देखो, गवर्नमेंट एडेड सोसाइटी हो गई, उसको हम स्टेट की डेफिनेशन में मानेंगे कि नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे हेल्ड जो ये हुआ था वो ये था कि हाँ, दैट गवर्नमेंट एडेड सोसाइटी can be under the definition of Article 12 and can be under the persuasion of state. So here it was held by Supreme Court that अगर कोई ऐसी सोसाइटी है
विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ अ स्टेट, क्योंकि स्टेट क्या कर रहा है, उसको फाइनेंशियली, फंक्शनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल कर रहा है. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. देखो क्या मेंशन है, दैट ड्यू टू डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल. तो यहाँ पे कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का. अगर गवर्नमेंट का उसके ऊपर फाइनेंशियली, फंक्शनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कंट्रोल है, तो हम ये मानेंगे दैट वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी है दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, दैट इज स्टेट. बट यहाँ पे एक तरह का टेस्ट लेके आए थे. The court laid down tests to determine whether an entity is a state, including financial assistance, government control and public functions. तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें चेक करना ज़रूरी था. अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो ही वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आएगी, अनलेस वो इसके एक्सपेंशन से हट भी सकती है. तो दिस जजमेंट एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12, ensuring that bodies exercising public functions with significant state control are only subject to constitutional scrutiny. तभी हम ये मानेंगे कि वो आर्टिकल 12 के अंदर एक तरह से मेंशन होएगी. Next is Z Telefilms Limited versus Union of India 2005. So here the main question was that there is a board of cricket which is called as BCCI, Board of Control for Cricket in India. इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी रेगुलेटिंग क्रिकेट इन इंडिया. तो ये जो प्राइवेट बॉडी है, क्या इसको हम ये कंसीडर करेंगे कि ये आर्टिकल 12 के एम्बिट में आएगी या नहीं आएगी. सो दिस वॉज हेल्ड दैट नॉट स्टेट एज इट इज़ नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया था कि जो बीसीसीआई है इसको हम स्टेट के अंदर नहीं मानेंगे, बिकॉज ये किसी भी तरह से फाइनेंशियली, फंक्शनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं है बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करता है. दो कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि बीसीसीआई कुछ पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है. पब्लिक फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो क्रिकेट को एक तरह से रेगुलेट करता है. तो क्रिकेट गेम को रेगुलेशन का काम है इसका. तो एक तरह से ये पब्लिक फंक्शन तो कर रहा है, तो इट कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226 अगर ये किसी भी तरह का लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट करता है. बट क्योंकि ये आर्टिकल 12 के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हम 32 के अंडर नहीं जा सकते. 32 के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि 12 को नहीं इन्फ्रिंज कर रहा है. बट अगर किसी और राइट को इन्फ्रिंज करता है जो कि हमारा लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो 226 के अंदर अपना राइट को क्लेम कर सकता है. इस केस ने ये क्लैरिफाई किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़, जो हमारी जो ऐसी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि प्राइवेट बॉडीज़ हैं, अगर वो किसी भी तरह का पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो हम उनको कहीं भी किसी भी आर्टिकल में ले जाके नहीं कोर्ट के पास ले जा सकते हैं. ऐसा नहीं है. अगर मान लो कोई ऐसी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कुछ पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, दे कैन बी स्क्रूटनाइज्ड अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन. हो सकता है वो 12 के अंदर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वो 12 के अंदर नहीं है, दैट्स ओके. तो 12 के अंदर नहीं तो 32 में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होना ज़रूरी है. बट अगर मान लो कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, तो 226 इज ओपन फॉर दैट. Now we come to our next article, that is Article 13, laws inconsistent with fundamental rights. पहला केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, which was in 1950. So the primary issue of this case was that whether Preventive Detention Act 1950, which allowed the government to detain individuals without trial, violates our fundamental rights, that is under Article 19, 21 and 22. तो यहाँ पे जो AK गोपालन है, ये एक तरह के कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्होंने चैलेंज किया था अपना डिटेंशन अंडर दिस लॉ. ये जो एक्ट था इसने अलाउ करा था गवर्नमेंट को कि वो बिना किसी ट्रायल के इंडिविजुअल को डिटेन कर सकता है, जो कि वायलेशन हो जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स का. तो यहाँ पे हेल्ड क्या किया गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया दैट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्टिकल 13 वॉज इंटरप्रिटेड नैरोली. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, पहली बात तो इसकी जो अभी मैंने एक एक्ट आपको बताया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट
50 ये क्या है, दिस इज वैलिड, इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। और ये भी रूल आउट किया दैट आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें मेंशन्ड है ओनली रिफर टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि ये मेंशन नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो वर्जन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंस है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 कहता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो यहाँ पे कोर्ट ने एक तरह का नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था दैट ईच फंडामेंटल राइट इज अ डिफरेंट राइट एंड कुड नॉट बी रेड टुगेदर। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में अगर फेयर है, रीजनेबल प्रोसीजर्स हैं, तो वहाँ पे अलाउ हो जाता है उस लॉ को पर्टिकुलरली अप्लाई करना। तो सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या था कि ये जो फर्दर इस जजमेंट को ओवर रूल किया गया था बाय दिस मनेका गांधी केस, लेकिन अभी हम यही मानेंगे कि ये वाला जो लॉ है, अगर ये फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर्स फॉलो करता है तो दैट लॉ, उस लॉ को हम सिर्फ इसलिए नहीं क्वैश कर देंगे दैट इट इज इनकंसिस्टेंट टू सर्टेन राइट्स। तो यहाँ पे इस दिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया था। नेक्स्ट आता है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। यहाँ पे मेन इशू क्या था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं अंडर आर्टिकल 13 वो वैलिड होंगे कि नहीं वैलिड होंगे। अब अमेंडमेंट होता किस में है, अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे जो मेन इशू निकल के आया वो ये था कि वेदर पार्लियामेंट के पास क्या अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अगर अनलिमिटेड पावर है तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 के। तो क्या ये जो इनहेरेंट लिमिट, क्या कोई ये जो पावर है इनके ऊपर कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं है। तो यहाँ पे इस केस ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ही वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया था कि इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कर्टेल हो रहे हैं और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो यहाँ पे हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया था। मतलब यहाँ पे देयर वर 13 जजेस की बेंच थी, 7:6 मेजॉरिटी रूलिंग हुई। और यहाँ पे पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उस पावर को लिमिट किया गया दैट इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो डॉक्ट्रिन था, दिस एस्टैब्लिश दैट फंडामेंटल फीचर्स, जैसे फंडामेंटल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हो गए, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनेस, जुडिशियल रिव्यू, दीज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अमेंडमेंट्स। तो इस जजमेंट ने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को थोड़ा सा लिमिट किया और ये इंश्योर किया कि जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारे फ्रेमर्स की जो इंटेंशन थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो डिस्टर्ब ना हो। तो मेकिंग इट अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हमारा जो ये पार्लियामेंट के ऊपर पावर लगाने का जो एक हमारा मोटो था दैट वाज कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट आता है आर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। So in this case, main issue was कि whether validity of laws passed in 9th schedule। देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जितने भी लॉज हैं अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के तो वो वॉइड हो जाएंगे। तो ये सारे केसेस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या था, 19th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, तो दिस कुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू स्पेशली इफ इट वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट्स। इस केस ने यही क्वेश्चन किया कि वेदर पार्लियामेंट कुड यूज 9th शेड्यूल एज अ शील्ड टू कीप लॉज बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी और इवन इफ दीज लॉज वॉयलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस एक तरह का इशू लेके आया रिगार्डिंग 9th शेड्यूल। तो यहाँ पे हेल्ड क्या हुआ था दैट सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली रूल किया दैट वट एवर लॉज आर प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, क्योंकि केशव नंदा भारती का केस 24 अप्रैल 1973 पर आया था। तो इसके बाद, इस डेट के बाद अगर कोई भी लॉज आते हैं 9th शेड्यूल में, दोज आर सब्जेक्ट टू दी जुडिशियल रिव्यू। अगर वो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा भी अगर इनकन्सिस्टेंट है
या उनको वॉयलेट करते हैं तो दे कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे री किया गया दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्योंकि देखो कोई कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी चेंज हो, आप कभी भी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो हमेशा एक तरह का चेक लगेगा कि ये जो डेट बताई गई 1973 के बाद से जो भी लॉज आए हैं उस पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू हम अप्लाई कर सकते हैं। जो जुडिशियल रिव्यू का जो जो उसके एंड्स हैं दैट वुड बी ओपन। और सुप्रीमेसी किसकी बताई, फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी ओवरराइड नहीं होंगे। Now comes the next, that is Article 14, which is equality before law. In this first case is E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu 1974. In this, the main issue was transfer of civil servant violating equality. Issue ये था कि जो ट्रांसफर हुआ था ईपी रोयप्पा का फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु टू अ लेसर पोजीशन वाज आर्बिट्ररी एंड वायलेटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे केस ने ये क्वेश्चन उठाया कि वेदर इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ओनली मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस। तो यहाँ पे जो एक तरह का जो आर्बिट्रेरी एक्शन होता है वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 14 में कि नहीं है, सिर्फ इक्वालिटी की ही बात हो रही है। तो हेल्ड क्या किया गया, दैट आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेट्स आर्टिकल 14। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आर्बिट्रेरीनेस। व्हाट हैज बीन डन बाय सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिश्ड आर्बिट्रेरीनेस। इस आर्बिट्रेरीनेस को के कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। और ये भी कहा दैट इक्वालिटी is just not about the classification, but it is also about the fairness, reasonableness and absence of arbitrariness। स्टेट के एक्शन में फेयरनेस भी होनी चाहिए, रीजनेबलनेस भी होनी चाहिए और साथ के साथ देयर मस्ट बी द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो कोर्ट ने ये बताया कि अगर आर्बिट्रेरीनेस होता है तो इट इज़ एंटी एथिकल ऑफ इक्वालिटी, एंटीथीसिस ऑफ इक्वालिटी, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ anti-ethical to society, and any arbitrary action would violate article 14। अगर कभी भी कोई ऐसा स्टेट एक्शन है जो कि violate कर रहा है article 14 को, तो that will be under the arbitrariness। This case also marked a shift from rigid interpretation of equality to the broader one, क्योंकि अभी क्या है, बहुत नैरोअर कॉन्सेप्ट था। अब इस केस के बाद क्या हो गया, इसका और ज़्यादा जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया, नैरोअर से ये ब्रॉडर चला गया, मोर सब्सटैंटिव हो गया और ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो गया than the later cases। नेक्स्ट इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इशू क्या था, पासपोर्ट इम्पाउंडेड विदाउट फेयर हियरिंग। मेन इशू ये था कि एक गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि मनेका गांधी का जो पासपोर्ट है अंडर द पासपोर्ट्स एक्ट 1967 विदाउट गिविंग हर अ चांस टू बी हर्ड, तो उसको इम्पाउंड कर लिया गया। और इस वजह से ये केस आया कि इनको लगा कि इनके ये 3 आर्टिकल्स जो हैं वो वॉयलेट कर दिए गए हैं, मतलब आर्टिकल 14, 19 और 21। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको चांस ही नहीं दिया गया टू बी हर्ड, फेयर हियरिंग नहीं हुई। यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड A.K. Gopalan case and held that Article 21 is not just about following any rule, but it must adhere to principles of fairness, justice and reasonableness। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में जो कहता है प्रोसीजर established by law, वो इंटरलिंक करता है आर्टिकल 14, 19 और 21 को। वो ये बताता है कि प्रोसीजर जो है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो आर्टिकल 14, 19, 21 आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इस जजमेंट ने एक्सपैंड किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, और इन्होंने एक चीज़ और लेके आए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रिंसिपल
ये वाला प्रिंसिपल इंडिया में आया था, स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन। Our next case is State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar 1952। इस केस में क्या था, इशू वॉज रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, एक वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स 1950 एक्ट था। इसने क्या करा था, दिस अलाउड द गवर्नमेंट टू रेफर सर्टेन केसेस टू स्पेशल कोर्ट्स विद डिफरेंट प्रोसीजर्स विच वायलेटेड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बाय क्रिएटिंग एन अनफेयर क्लासिफिकेशन। क्योंकि सर्टेन केसेस को स्पेशल कोर्ट्स में क्यों पहुंचा रहे हैं और स्पेशल के कोर्ट्स में पहुंचा भी रहे हैं तो उनका प्रोसीजर क्यों डिफरेंट है, इसलिए इसको बोला गया दैट इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द रीजन बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। उस सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट इट वायलेटेड आर्टिकल 14, क्योंकि क्या हो गया कि एक तरह से आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन बना दिया, सर्टेन केसेस को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और प्रोसीजर भी डिफरेंट है। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे ही होना चाहिए और उसका एक रेशनल नेक्सस होना चाहिए टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। मतलब कि एक प्रॉपर रीजनेबल रीज़न हो या एक रेशनल नेक्सस हो, कुछ ऑब्जेक्टिव हो जिससे कि आप ये प्रूव कर सके दैट इट इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो इस केस के बाद रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस को भी री एनफोर्स किया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन यहाँ से रीअफर्म हुआ। मतलब यही दो जो वर्ड्स हैं दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस, इनको फोकस किया गया। अगर ऐसा कुछ अलग से बहुत ज़रूरी है अगर कोई क्लासिफिकेशन करना तो वी हैव टू फुलफिल दीज टू कंडीशंस, अनलेस अगर कुछ और चीज़ें होती हैं दैट वुड बी दी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। नाउ कम्स आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। First case is State of Madras versus Champakam Dorairajan 1951। In this case, the issue was regarding the caste-based reservations in education. In this case, challenge that एक communal government order आया मद्रास से, इन्होंने क्या किया, रिजर्व कर दी सीट्स इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस और जो इनका जो रिजर्वेशन था दैट वाज कास्ट बेस्ड। इन्होंने कास्ट बेस्ड कोटा एक तरह से लगा दिया और वो कास्ट बेस्ड कोटा लगा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्टेट रन कर रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ ये आया कि वेदर दिस जो रिजर्वेशन ये लेके आए हैं दैट वायलेटेड आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 क्या बात करता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था दैट वाज कास्ट बेस्ड। यहाँ पे जो इशू ये था कि जो आर्टिकल 29(2) है क्या ये वायलेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 29(2) हमारा क्या कहता है, दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब पिक्चर में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये मद्रास गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों स्ट्रक डाउन किया, क्योंकि इसने वायलेट किया हमारा आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2। यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट जो भी स्टेट इम्पोज्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन दोज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस बैक्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब के सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अनलेस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही आ जाए। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1951 में ये अमेंडमेंट हुआ था और 1915 के अमेंडमेंट के बाद एक आर्टिकल जो पहले से हमारे पास आर्टिकल 15 था उसका सब क्लॉज 4 ऐड किया गया। सब क्लॉज 4 क्या कहता है, दैट इट अलाउज स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि स्टेट के पास स्टेट को सर्टन
पावर दी गई कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और एससीज और एसटीज। तो वहाँ पे आर्टिकल 15(4) को अलाउ किया गया। तो ये जो केस है आया तो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 के लिए था, बट इसने क्या किया फर्दर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 बना दिया। तो पहली चीज तो आर्टिकल 29 जो है वो वॉयलेटेड है, यहाँ पे आर्टिकल 15 भी वॉयलेट कर रहा है। तो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ इसी बेसिस पे होंगे कि कोई ऐसी क्लास ऑफ सिटीजन्स है दैट इज विच इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, वहीं पे स्टेट को अलाउ किया गया है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। नेक्स्ट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। मेन इशू क्या था कि रिजर्वेशंस एंड क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। तो मेन इशू क्या हुआ कि वैलिडिटी, एक मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी। उस मंडल कमीशन रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो हम किसके लिए कर दें, फॉर दी ओबीसीज अदर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये 27% का जो रिजर्वेशन है इसको हम लेके आए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या था कि जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क हुआ था। तो मेन क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि वेदर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वॉयलेट आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और वेदर रिजर्वेशन कुड एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट्स। तो यहाँ पे ये हुआ, ये हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया दैट इफ अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन क्रीमी लेयर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ओबीसी को रिजर्वेशन हम देंगे, बट देयर वर सर्टेन की रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन दीज रिजर्वेशंस। तो पहला क्या था कि 50% कैप होना चाहिए टोटल रिजर्वेशन से, 50% से एक्सीड नहीं करेगा, और ये इंश्योर करो कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक आपने देख लिया कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखा और बैकवर्ड में डाल दिया। सो दिस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू डिटरमाइन दी बैकवर्डनेस। थर्ड क्या हो गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बाद में जाके इस वाले पॉइंट को ओवरटर्न किया गया, बट फॉर दिस केस रिजर्वेशन इन प्रमोशन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो ये जो केस था इसने डिफाइन किया एक तरह का एफर्मेटिव एक्शन, और इस एफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाई, एंड दोज लिमिट्स वर डिफाइंड अंडर दिस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992. So this case defined the scope of affirmative action under the Indian Constitution. Next is Navtej Singh Johar versus Union of India 2018. यहाँ पे क्या हुआ, constitutionality of section 377 of IPC was in question. Section 377 क्या कहता है, पहले दैट इट क्रिमिनलाइज्ड सेम सेक्स रिलेशंस, और सेम सेक्स रिलेशन को वॉयलेट कौन कौन से ग्राउंड पे वॉयलेटिव बताता था, अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इसको डीक्रिमिनलाइज किया। पहले ये क्योंकि आईपीसी में है तो दैट मीन्स कि एक तरह का ऑफेंस माना गया था। सबसे पहले हेल्ड ये हुआ दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, और इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया कि कंसेंशुअल जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं दैट जो पहले सेक्शन 377 में क्रिमिनलाइज्ड थे दैट विल बी डीक्रिमिनलाइज्ड, और सेक्शन 377 को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और ये भी बताया कि अगर कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं तो कोई इशू नहीं है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये एक तरह का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, तो वो हमारा आर्टिकल 21 में के स्कोप में आ जाएगा। क्रिमिनलाइज किया LGBTQ प्लस इंडिविजुअल्स को वॉयलेट कर रहे थे जो फंडामेंटल राइट्स, एंड वाज डिस्क्रिमिनेटरी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15। नेक्स्ट राइट टू प्राइवेसी जो कि रिकग्नाइज हुआ था हमारे पुत्ता स्वामी केस 2017 में।
उसने इंक्लूड किया राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी। तो राइट टू प्राइवेसी में राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज होगी पहली चीज तो हमारी होमोसेक्सुअलिटी, और आर्टिकल 15 का जो स्कोप है दैट वाज एक्सपैंडेड। तो एक तरह से देखा जाए एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी LGBTQ प्लस जो ये एक तरह से कम्युनिटी बनाई गई है, तो इनके राइट्स के लिए बहुत बड़ा एक जजमेंट आया था, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी ओवर दी सोशल मोरालिटी। सो दिस केस वाज दी वेरी इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग आर्टिकल 377। और आर्टिकल 15 में क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी हो गया था, तो डिस्क्रिमिनेशन को हमने हटा दिया था। नाउ कम्स आर्टिकल 16 दैट इज इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे नाउ इंदिरा साहनी वाला केस हम दोबारा से देख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो रिजर्वेशन की बात करता था। तो यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे ना, 50% कैप वाला, तो रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वेदर इट इज मतलब ओके और नॉट। तो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि हम 50% कैप लगा सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन इंक्रीज क्यों हुआ था, क्योंकि रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वायलेटेड आर्टिकल 16(1) और 16(2) इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और नॉट। तो यहाँ पे यही आया था कि हम अलाउ कर देंगे रिजर्वेशन को, अलाउ हो जाएगा, बट देयर आर सर्टेन की रेस्ट्रिक्शंस। वो की रेस्ट्रिक्शंस मैंने अभी रिसेंटली बताया है कि 3 की रेस्ट्रिक्शंस होंगे, रेफर अंडर द आर्टिकल 15। सो सेम यहीं पे अप्लाई हो जाएगा आर्टिकल 16 में भी। नेक्स्ट कम्स M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। सो इशू क्या हुआ, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। केस ऐसा था कि वेदर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SCs एंड STs अंडर आर्टिकल 16(4)A एंड 16(4)B वर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो की क्वेश्चंस क्या अराइज हुए, पहला ये कि ये जो रिजर्वेशन हो रहे हैं प्रमोशन में, whether they violated Article 14 और Article 16(1) which is merit based selection। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि गवर्नमेंट मस्ट शो क्वांटिफाइबल डेटा प्रूविंग बैकवर्डनेस, inadequate रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बिफोर ग्रांटिंग सच रिजर्वेशंस। तो ये दो क्वेश्चंस अराइज हुए। इसमें हेल्ड क्या हुआ, दैट इट इज परमिसिबल इफ सपोर्टेड बाय डेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस। अपहेल्ड तो हो गया, बट सर्टेन कंडीशंस वर अप्लाइड। कुछ कंडीशंस अप्लाई करी थी, वो इम्पोज कंडीशंस क्या थी कि पहला, स्टेट को जो क्वांटिफाइबल डेटा है प्रूविंग दैट SCs एंड STs आर बैकवर्ड एंड इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स, इस चीज़ का डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहला हो गया कि डेटा मस्ट बी गिवन बाय द स्टेट। सेकेंड हो गया रिजर्वेशन मस्ट नॉट ब्रीच द 50%। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन के तैयार हुआ कि 50% से ज़्यादा हमें लिमिट रिजर्वेशन की नहीं बढ़ानी है, तो वो इंदिरा साहनी वाले केसेस से ही आ गया। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, आर्टिकल 335 जो कहता है, तो वो उसको भी हमने अपनी थर्ड वाली जो कंडीशन थी वो बना दी। तो यहाँ पे जजमेंट जो था दैट लिमिटेड द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन दी प्रमोशंस बाय मेकिंग इट सब्जेक्ट टू डेटा बैक justifications, तो reinforce the conditions of article 16(4)A। नेक्स्ट इज BK पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी लॉ वाज questioned। The challenge was this कि whether the validity of Karnataka Reservation Act 2018, यहाँ पे क्या था, this granted reservations in promotion for SCs and STs without providing quantifiable data। अब पहले वाले केस में क्या है 2006 M नागराज केस में कि डेटा से आप अगर डेटा देते हो तो दैट इज ओके, पर कर्नाटका रिजर्वेशन एक्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि हमें डेटा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और हम प्रमोशन देंगे, रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में। सो दिस इशू was that whether this law violated Article 14 and 16 by granting reservation without providing backwardness and inadequate representation। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया एंड इट upheld the reservation in promotions। सुप्रीम कोर्ट बोला दैट it upheld the Karnataka Reservation Act 2018, ruling that the state need not
prove backwardness of SCs and STs before granting reservation in promotion। पहली चीज तो उसने सबसे पहले यही बोल दिया कि स्टेट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है किस चीज में, बैकवर्डनेस ऑफ SC STs बिफोर ग्रांटिंग देम दी प्रमोशंस and giving them reservation in promotion। second क्या हो गया, only inadequate representation and impact on administrative efficiency need to be examined। मतलब अगर आपका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इनएडुकेट और उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में, तो उसी को ही सिर्फ आपको चेक करना है। ये तीसरा पॉइंट ये हुआ दैट एम नागराज जजमेंट वाज मिस इंटरप्रेटेड अर्लियर, और स्टेट के पास ये पावर है टू मेक रिजर्वेशन लॉज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे स्टेट का एफर्मेटिव एक्शन को फर्दर प्रमोट किया गया। तो ये जो तीन यहाँ पे जो तीन ऊपर वाले में जो पॉइंट्स दिए गए थे, इसको एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन माना गया और इन कंडीशंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया और ये बोला गया कि ग्रांटिंग रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस कैन बी गिवन बाय द स्टेट, बस वो जो पॉलिसीज हैं दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, abolition of untouchability। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। तो यहाँ पे सबसे पहले इशू क्या आया, untouchability and caste discrimination at workplace। तो the case question that whether नॉन एन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज पर्टिकुलरली कहाँ से आया था, फ्रॉम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। यहाँ पे क्या था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एट एशियन गेम्स कंस्ट्रक्शन साइट इन दिल्ली, दिस वायलेटेड आर्टिकल 14, 21, 23 एंड 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे द क्वेश्चन वॉज दैट वेदर फोर्स्ड लेबर इंक्लूडेड इकोनॉमिक कोर्शन एंड वेदर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड ट्रेडिशनल बॉन्डेड लेबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आया, हेल्ड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड बोला दैट इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17। पहली चीज तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे हो रही है, साथ के साथ अनटचेबिलिटी भी परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे दिस कम्स अंडर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17। प्लस क्योंकि और भी आर्टिकल्स एडेड थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया दैट फोर्स्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23 इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल कोअर्शन बट ऑल्सो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि आप जबरदस्ती लोगों को फोर्स कर रहे हो टू वर्क फॉर वेजेस विच इज मिनिमम दैन द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय द एक्ट। तो ये एक तरह का वायलेशन हो गया। अब नॉन पेमेंट है मिनिमम वेजेस का, तो वो एक तरह से राइट टू लाइफ आप नहीं दे रहे हो, और साथ के साथ आर्टिकल 23 का भी वायलेशन है क्योंकि आप फोर्स लेबर करवा रहे हो। यहाँ पे PIL भी इंट्रोड्यूस किया गया दैट इट PIL कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ दीज डिसएडवांटेज्ड पीपल। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस आर्टिकल 17 का भी एक्सपैंड हुआ टू इंक्लूड इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट कैसे है, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी भी है, फोर्स लेबर के थ्रू हो रहा है, एंड फोर्स लेबर के साथ साथ आप उनको मिनिमम वेज भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उससे भी लो प्रोवाइड हो रही है। तो कई सारे आर्टिकल्स इन्फ्रिंज्ड थे, आर्टिकल 17 भी पिक्चर में आता है। सो दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17 केस लॉज। नेक्स्ट आएगा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बलू इंगले 1995। यहाँ पे इट वॉज रिगार्डिंग सोशल बॉयकॉट ऑफ Dalits। This case dealt with atrocities against SCs and interpretation of SC/ST Act 1989। Issue was regarding कि whether denying of SCs access to public spaces and subjecting them to violence violated fundamental rights and state strict legal action is required। हो क्या रहा था कि ये जो SCs हैं इनका एक्सेस टू दी पब्लिक स्पेसेस वॉज डिनाइड, तो उन एक तरह से सोशल बॉयकॉट हो रहा था इनके साथ। तो ये क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि दैट क्या ये वायलेटिव नहीं है फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दिस वाज इलीगल अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 17। तो इलीगल हो गया
तो यहाँ पे एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं अगेंस्ट एस मस्ट बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। 1989 का एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसके अंडर पनिशेबल होगा अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है तो। कोर्ट को प्रोएक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत थी, एक तरह का प्रोएक्टिव रोल की ज़रूरत थी इन प्रोटेक्टिंग दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, और इनको जो एक तरह का कास्ट बेस्ड वायलेंस इनके साथ जो होने लगा था और कास्ट बेस्ड ऑपरेशन जो ये फेस कर रहे थे उसको कम करने का जो काम था दैट वाज गिवन। तो इस केस ने क्या किया, इट स्ट्रेंथन्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन। तो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की SC STs को और एम्फेसाइज किया स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन कास्ट। नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। मेन इशू क्या हो गया, वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न। केस क्या आया, चैलेंज किया कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड्स हो गए, ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वायलेटेड आर्टिकल 18 विच प्रोहिबिट्स टाइटल्स इन इंडिया। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि कोई भी टाइटल्स हमें यूज़ नहीं करने हैं एक्सेप्ट इट इज़ मिलिट्री और सम काइंड ऑफ एजुकेशनल टाइटल्स, कोई डिग्रीज के टाइटल जैसे डॉक्टर वगैरह यूज़ होता है। तो इशू ये आया कि वेदर दीज अवार्ड्स अमाउंटेड टू स्टेट ग्रांटेड टाइटल्स दैट क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी और नॉट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट it is non-violative of Article 18 as long as not used as titles। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला that validity of भारत रत्न, पद्म विभूषण and other civilian awards is okay, but ruling क्या थी, that national awards do not violate Article 18(1) because they are not hereditary titles। hereditary नहीं है, वो जिसको वो award मिला है सिर्फ उसको ही दिया गया है और ये वॉयलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 18 के। अच्छा, इन अवार्ड्स को दिया क्यों जाता है, क्योंकि ये एक तरह से रिकग्निशन है मेरिट के बेसिस पे या आपने नेशन को सर्व किया है, ये किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं है। ये आर्टिकल 18 मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको इसलिए अबॉलिश किया गया था क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स चल गए थे ब्रिटिशर्स की वजह से, जैसे लॉर्ड हो गया, इस तरह के जो टाइटल्स थे वो यूज़ होने लगे थे, इनको हटाने के लिए यूज़ किया गया था। तो जब वो एक तरह का प्रिविलेज था, यहाँ पे क्या है, प्रिविलेज नहीं है क्योंकि वो रिकग्निशन हुआ है मेरिट के बेस पे। बहुत सारे लोगों में से कुछ स्पेशल लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा उनका रेफरेंस रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी फील्ड में, तो उसकी वजह से उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया है और इन अवार्ड्स को दिया गया है। तो दीज आर नॉट प्रिविलेजेस। However, these awardees should not misuse them as their titles। मतलब उन्हें अपना प्रीफिक्स नहीं लगाना है नाम के आगे, जैसे कि हो गया हमारा प्रीफिक्स कि हमने आगे लगा लिया पद्मश्री और फिर अपना नाम, तो इस तरह का जैसे पद्मश्री XYZ, तो इस तरह का नाम मेंशन नहीं करेंगे तब तक वो मिसयूज नहीं है उनके इस अवार्ड का। यहाँ पे इस केस ने क्लैरिफाई किया था दैट ऑल दीज नेशनल अवार्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट ट्रीटेड एज टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। तो यहाँ जो आर्टिकल 18 का जो स्कोप था उसको और क्लैरिफिकेशन मिला और ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया बिकॉज दीज अवार्ड्स are totally constitutional unless they are not used as the titles of nobility। नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 19 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द 6 फ्रीडम्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड द केस लॉज फॉर द सेम आर रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले इशू क्या बना, बैन ऑन जर्नल फॉर थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। एक मद्रास गवर्नमेंट का बैन था ऑन सर्कुलेशन ऑफ सर्टेन जर्नल जिसका नाम था क्रॉस रोड्स। ये जो क्रॉस रोड्स नाम की जर्नल थी
This cited public safety concerns under Madras Maintenance of Public Order Act 1949. ये जो जर्नल थी क्रॉस रोड्स, इसके ऊपर मद्रास गवर्नमेंट का बैन लग गया था कि इसको फर्दर आप बेचोगे नहीं, बिकॉज उसको गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि देर आर सर्टन पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स जो ये वॉयलेट कर रहा है अंडर द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। यहाँ पे इशू ये आया कि this issue was that whether this banned article 19(1)(a) freedom of speech and expression, and whether public safety was a ground for restricting free speech under article 19(2). 19(2) क्या कर रहा है, 19(1) पे restriction लगाता है, so whether this is a violation of these articles or not। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया that freedom of speech and expression is essential for democracy and cannot be restricted arbitrarily। तो सबसे पहले कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम ऐसी नहीं रेस्ट्रिक्शन इस पर लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आया कि अगर मान लो आर्टिकल 19(1) पे आर्टिकल 19(1)(a) पे आर्टिकल 19(2) रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच आर लिमिटेड टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड डू नॉट इंक्लूड पब्लिक सेफ्टी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तो ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन दी आर्टिकल, बट दैट डजंट इंक्लूड्स पब्लिक सेफ्टी। Madras government order was unconstitutional as it was violating Article 19(1)(a) without a valid restriction under Article 19(2). तो 19(2) में तो आएगा ही नहीं क्योंकि 19(2) तो क्या कह रहा है, वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी की बात ही नहीं कर रहा। और ये जो जर्नल थी इसको किस बेसिस पे इन्होंने उसके ऊपर लगाया था बैन, दैट वाज पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। तो पब्लिक सेफ्टी वाज नथिंग अंडर आर्टिकल 19(2). सो दिस बैन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसको आर्टिकल 1(a) का वायलेशन माना गया था। तो जो ये केस आया दैट इस्टेब्लिश फ्रीडम ऑफ प्रेस एज अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच, और जो रेस्ट्रिक्शंस जो आए हैं दैट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉल अंडर आर्टिकल 19(2), तभी वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकते हैं अनलेस दिस केस स्ट्रेंथन दी प्रेस फ्रीडम। नेक्स्ट इज बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। Issue was government's newspaper page limit. The case challenged the newsprint policy of 1972 जिसने कि restrictions लगाए number of pages जो कि newspaper print कर सकता है, citing equitable distribution of newsprint। इन्होंने कहा कि हम रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके न्यूज़ प्रिंट पे, और दिस इशू वाज वेदर दैट इट रेस्ट्रिक्ट्स आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड 19(1)(g) ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट ऑफ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिया गया है दैट इंक्लूड्स राइट टू पब्लिश विदाउट एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल ज़रूरी है बट अगर एक्सेसिव हो जाता है तो दैट कम्स अंडर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ क्या इंक्लूड किया गया, राइट टू पब्लिश विदाउट एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 19(1)(a) का वायलेशन मान लिया इसको एंड इट स्ट्रक डाउन दैट पर्टिकुलर जो भी पॉलिसी आई थी उसको। रेस्ट्रिक्टिंग न्यूज़ प्रिंट इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट्स कंटेंट, और ये रेस्ट्रिक्ट कंटेंट करना मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे ही नहीं रहे हो, तो आर्टिकल 19(1)(a) सीधा सीधा क्या हो गया, इसका वायलेशन हो गया, और इस वायलेशन की वजह से उन्होंने इसको स्ट्रक कर दिया। द न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, और ये भी बताया दैट दिस प्रोपोर्शनली अफेक्टेड लार्ज न्यूज़पेपर्स एंड वायलेटिंग बोथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि एक तरह का बिजनेस भी है, प्रेस एक तरह का बिजनेस हो गया, उसको भी आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उनके बिजनेस को, उनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया, अपहेल्ड द कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे केस ने रीइंफोर्स किया दैट इकोनॉमिक रेगुलेशंस दैट इनडायरेक्टली कर्ब प्रेस फ्रीडम आर ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट इज श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इस केस ने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 66A IT एक्ट की वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। और सेक्शन 66A क्या कहता है, दैट क्रिमिनलाइज्ड सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस ऑनलाइन। दिस इशू वाज रिगार्डिंग वेदर इट वायलेटेड आर्टिकल 19(1)(a और नॉट।
अब 1918 फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो ये वेग और आर्बिट्ररी होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट आर्टिकल 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल? बिकॉज द सेक्शन वाज वेग एंड ओवरबोर्ड। वेग एंड ओवरबोर्ड वर्ड was used. Vague and overboard. Why? Because offensive speech is not a reasonable restriction under 19(2). 19(1)A के ऊपर restriction लगा रहा है हमारा 19 सब क्लॉज 2, और सब क्लॉज 2 कहीं भी ये मेंशन नहीं करता है कि ऑफेंसिव स्पीच है तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ऑफेंसिव स्पीच एक तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप 66A में इसको यूज करते हैं। ऑनलाइन स्पीच हैज़ द सेम प्रोटेक्शन एज ऑफलाइन स्पीच। और यहाँ पे कोर्ट ने एक चीज़ और मेंशन की दैट जैसी ऑफलाइन स्पीच को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं एज इट इज़ प्रोटेक्शन मिलेगी ऑनलाइन फ्री स्पीच को भी। तो यहाँ पे दिस वॉज द लैंडमार्क जजमेंट विच प्रोटेक्टेड डिजिटल फ्री स्पीच, और यहाँ पे जो आर्बिट्ररी एक्शंस हो रहे थे ऑन दी ऑनलाइन एक्सप्रेशन उसको भी रोका गया। Next comes our Article 20, which is protection in respect of conviction for offences. So first is Selvi versus State of Karnataka 2010. इशू क्या क्रिएट हुआ? यूज ऑफ नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट। इस केस में क्वेश्चन हुआ कि जो ये नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और जो वेरियस ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स जो यूज होती थी एक्यूज पर्सन्स के ऊपर विदाउट देयर कंसेंट, वेदर इट वायलेटेड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 21 और नॉट। अब देखो 20 के 3 पार्ट मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, उसी का जो थर्ड पार्ट था राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन की यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, तो ये 23 तो एक तरह से वॉयलेट हो जाएगा अगर आप इस तरह के टेस्ट किसी भी एक्यूज के ऊपर यूज कर दोगे विदाउट दी कंसेंट। आप मतलब उसकी कंसेंट भी नहीं ले रहे हो और इन टेस्ट का यूज कर रहे हो तो वो अपने अगेंस्ट विटनेस हो गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट थे कंडक्टेड विदाउट कंसेंट विल वायलेट आर्टिकल 23 एज ए अमाउंट टू फोर्स्ड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यहाँ पे 23 का वायलेशन हो जाएगा। These techniques also violate Article 21 बिकॉज ये आपकी पर्सनल लिबर्टी और मेंटल प्राइवेसी को भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं, क्योंकि इन टेस्ट की वजह से क्या है, जो पर्सन है उसके आंसर्स जो होते हैं वो उनका जो इंक्लिनेशन होता है वो ट्रूथ की ही तरफ होता है। तो इसलिए आर्टिकल 21 का भी इन्फ्रिंजमेंट हो गया क्योंकि आप किसी की पर्सनल और मेंटल प्राइवेसी को भी आप हिंडर कर रहे हो। थर्ड इज इफ पर्सनल वॉलेंटरली अंडरगोज दीज टेस्ट, तब आप उसको एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो। तो देखो अगर विदाउट कंसेंट है तो वॉयलेशन है, ठीक है, अगर विदाउट कंसेंट है तो वॉयलेशन है, अगर विद कंसेंट है तो वॉयलेशन नहीं होगा और सेल्फ इंक्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगी। अगर विद कंसेंट है तो दीज रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड एज द एविडेंस। यहाँ पे द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड बॉडीली ऑटोनॉमी was reinforced, और जो यूज ऑफ कोर्सिव इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जो हो रहा था उसको थोड़ा सा लिमिट किया गया कि ज़बरदस्ती ये सारे टेस्ट आप किसी भी एक्यूज के ऊपर नहीं कर सकते। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994, यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ टाडा प्रोविजंस की क्वेश्चन मार्क लगाया गया। वैलिडिटी ऑफ टाडा प्रोविजंस, टाडा क्या था? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। ये जो पर्टिकुलर एक्ट था दैट इट्स स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लाइक एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन बेल्स और रिवर्स्ड बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सारे जो इसके प्रोविजंस थे इन पे क्वेश्चन था। और द इशू वाज दिस दैट वेदर दीज प्रोविजंस वायलेट आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो क्या करा, सम प्रोविजंस वर upheld एंड अदर्स वर स्ट्रक डाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी जो थी टाडा की इसको अपहेल्ड किया बट सर्टन सेफगार्ड्स लगाए। क्या क्या? जैसे टेररिज्म इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइम,
और क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइम है तो दैट रिक्वायर्स स्ट्रिंजेंट लॉज, बट दैट लॉज मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट मिसयूज। उन लॉज का, उन प्रोविजंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक्ट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो क्वेश्चन क्या था कि एक्ट पे ही तो क्वेश्चन हो गया ना टाडा के प्रोविजंस के ऊपर, तो एक्ट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस जैसे प्रोलॉन्ग डिटेंशन विदाउट ट्रायल एटसेट्रा, इनको नीडेड टू बी अप्लाइड कॉशियसली, इनको आपको प्रॉपर प्रॉपर कॉशन के साथ अप्लाई करना है। कन्फेशंस मेड टू पुलिस ऑफिसर्स अंडर टाडा कुड बी यूज्ड एज एविडेंस बट ओनली विद स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड। यूज किए जा सकते हैं कन्फेशंस लोगों के, जो भी पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने करा है, बट उनको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, बट कुछ सर्टेन स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया टाडा को, लेकिन उसके मिसयूज के अगेंस्ट भी वार्न किया और कुछ फेयर एप्लीकेशन हो सके इसकी सर्टेन गाइडलाइंस भी बताई। तो सम प्रोविजंस वर अपहेल्ड एंड सम वर स्ट्रक डाउन। सो दिस बैलेंस्ड द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है टाडा के अंदर, टाडा एक टेररिज्म के ऊपर एक तरह का प्रॉपर लॉ है, तो दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टर, बट इंडिविजुअल राइट्स को भी ध्यान में रखते हुए इसको फर्दर बताया गया कि कैसे आगे फर्दर ये वर्क करेगा। नेक्स्ट is State of Bombay versus Kathi Kalu Ogad 1961. This questions the taking fingerprints and handwriting as evidence. So this question was that whether the use of fingerprints, handwriting samples, and photograph as evidence violated Article 23, that is right against self-incrimination or not. So issue was कि अगर आप compel करते हैं किसी accused को कि वो कुछ इस तरह के physical evidence दे, तो क्या this is equivalent to making them testify against themselves? तो यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट इट डज नॉट अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि ओनली टेस्टिमोनियल एविडेंस, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हो गए या कोई कन्फेशन हो गया, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर, नॉट द फिजिकल एविडेंसेस सच एज फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग सैंपल्स। Forcing an accused to provide bodily evidence is not under self-incrimination as it does not involve an oral statement, क्योंकि किसी भी तरह का confession नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा statement नहीं है जो कह दे कि हाँ मैंने ही ये किया है। या जैसे अभी ऊपर हम देख रहे थे नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट, आप दिमाग के साथ खेल के आप ट्रूथ निकलवा रहे थे, तो ये, और वो भी विदाउट कंसेंट। तो यहाँ फिंगरप्रिंट लेना या हैंड राइटिंग लेना डजंट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ओनली प्रोटेक्ट्स द मेंटल एविडेंसेस, जैसे कि थॉट्स, जैसे कि आपका कन्फेशन, जैसे आपके स्टेटमेंट्स, बट नॉट एनी काइंड ऑफ फिजिकल एविडेंस, जैसे आपके कोई बॉडी सैंपल, आपका कोई फिंगरप्रिंट्स या आपका कोई डीएनए, ये इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो जो था वो सिर्फ मेंटल था बट नॉट फिजिकल, इसको इस केस में प्रॉपर लेके आ गया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्टिमोनियल एंड फिजिकल एविडेंस वाज clarified under this case. Next comes Article 21, right to life and personal liberty. So the first case is Maneka Gandhi versus Union of India 1978. इशू क्या था? पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया था, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी लेट्स जस्ट रिवाइज इट कि पासपोर्ट जो था मनेका गांधी का, उसको इम्पाउंड कर लिया था अंडर द पासपोर्ट्स एक्ट 1967 और उनको चांस नहीं दिया गया था फॉर फेयर हियरिंग। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस थे, पहला आर्टिकल 14 और 19 इन्फ्रिंज हुआ है, इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा आर्टिकल 21 जहाँ पे फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो आर्टिकल 21 के अंदर कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी वो ये थी कि एनी प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, इंट्रोड्यूसिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल इन इंडिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ पहले से ही था। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ये मैंने पहले ही बताया कि ये इंटरकनेक्टेड है एंड द लॉ वायलेटिंग वन मे वायलेट द अदर्स। अगर किसी एक का वायलेशन हो रहा है तो दूसरे का भी हो सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और गवर्नमेंट का एक्शन अगर आर्बिट्ररी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मनेका गांधी को क्या था, हियरिंग नहीं दिया गया था, हियरिंग का चांस नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्बिट्ररी एक्शन हो गया
और उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया। तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है पर्सनल लिबर्टी का, उसको उस पे चेक लगाया गया एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस इन इंडिया। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का जो स्कोप है दैट वाज एक्सपैंडेड और ड्यू प्रोसेस को लेके आया गया। तो दैट वाज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि 14 और 19 भी यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट उनका हो रहा था। Next is Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017. Question issue was this, that whether is right to privacy a fundamental right? क्वेश्चन ये था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट होगा या नहीं होगा। पर्टिकुलरली ये केस किससे रिलेटेड था, आपके आधार के बायोमेट्रिक से। आधार वाला केस जो है वो यही है कि हमारा जो आधार का बायोमेट्रिक डेटा है और आधार का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, तो वेदर दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी और नॉट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, स्पेसिफिकली अंडर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। अब प्राइवेसी इंक्लूड्स का मतलब क्या हो गया कि ऑटोनॉमी ओवर पर्सनल चॉइसेस, बॉडली इंटीग्रिटी एंड इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, ये सब कुछ इंक्लूड करेगा, प्राइवेसी में ही आएगा। Any law restricting privacy must pass test of legality, necessity and proportionality। तो इस जजमेंट में क्या था कि अगर आपको ऐसा कोई लॉ है जो प्राइवेसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसको क्या नेसेसिटी है उसकी, क्या लीगैलिटी है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, ये सारे टेस्ट को पास करना ज़रूरी होगा। तो दिस लैंडमार्क जजमेंट रिकग्नाइज्ड प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। और जो भी ऐसे लॉज हैं जो सर्विलेंस को लेके, आधार को लेके या पर्सनल फ्रीडम्स को लेके, इन पे चेक लग जाएगा इफ इट हिंडर्स राइट टू प्राइवेसी। तो दिस वाज लैंडमार्क रूलिंग ऑन प्राइवेसी एंड लिबर्टी। नेक्स्ट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो ये केस आया था, एक ब्रूटल गैंग रेप हुआ था, एक सोशल वर्कर थी बनवारी देवी इन राजस्थान की। इशू क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉज ऑन वर्क प्लेस, सेक्शुअल हैरेसमेंट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स 14, 19 एंड 21। तो देयर वर लैक ऑफ लॉज अगेंस्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एक गैंग रेप के बाद ये पिक्चर में चीज़ आई कि वर्क प्लेस पे तो कोई लॉज ही नहीं है जो सेक्शुअल हैरेसमेंट को रेगुलेट कर सकें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट्स दीज 3 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हम 21 की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 21 को लेके चलेंगे, 21 प्लस 14 एंड 19, ये तीनों आर्टिकल्स का वायलेशन है। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, कोर्ट लेड डाउन दैट विशाखा गाइडलाइंस रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर्स टू certain provide certain प्रोटेक्शन एंड एड्रेस वर्क प्लेस हैरेसमेंट। यहाँ पे जो कोर्ट थी उसने कुछ गाइडलाइंस दी, और वो गाइडलाइंस थी कि जो वर्क प्लेस पे जो फीमेल्स हैं उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। एक तरह के बोर्ड बनाए गए, एक तरह की कमिटी बनाई गई जिसको बोलते हैं ICC, दैट इज़ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। इन कमिटीज से क्या हुआ था, हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए और आप एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें, इस वजह से ये कमेटी बनाई गई थी कि कंप्लेन आप जाके वहाँ कर सकते हैं एंड दीज कंप्लेन्स विल बी हैंडल्ड स्विफ्टली एंड फेयरली। तो गवर्नमेंट मस्ट इनैक्ट लेजिस्लेशन टू एड्रेस वर्क प्लेस हैरेसमेंट्स। इसी के बाद एक आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, एंड दिस वॉज बिलीव मी अ माइलस्टोन इन वुमेन्स राइट एंड वर्क प्लेस सेफ्टी इन इंडिया। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया, जुडिशियल लेजिस्लेशन फॉर जेंडर राइट्स एट वर्क, क्योंकि ये एक्ट इसके बाद आया था और इसने वुमेन्स के राइट को एट द वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया था। नाउ कम्स आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो, AK गोपालन केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन चैलेंज क्या था, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 21 का एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि
ये जो आर्टिकल 21 है, दिस रिक्वायर्स प्रोसीजर established by law, meaning any law passed by legislature is valid even if it is unfair. Fundamental rights are not interdependent, so article 21 does not align with article 14 and 19. ऐसा इस केस में हुआ था, but this preventive detention was constitutional even if it restricted personal liberty. ये एक तरह का narrow representation था किसका, आर्टिकल 1921 और हमारा 14 का, बट क्योंकि ये नैरो इंटरप्रिटेशन हो गया था, दिस वाज लेटर ओवर रूल्ड बाय दी मनेका गांधी केस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड था, सो वी यूज इट इन अंडर दिस आर्टिकल ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाएगा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो पहला क्या हो गया इसका इशू, वेदर हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी और नॉट। तो इमरजेंसी 1975 और 77 के टाइम पे जो लगी थी, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट्स। तो जो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हुए थे, दैट वाज इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। The issue was this, whether habeas corpus petitions could be filed against illegal detentions during emergency. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने रूल किया दैट नॉट अवेलेबल। क्यों नॉट अवेलेबल है, क्योंकि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड, मतलब कि कोई भी पर्सन अनलॉफुल डिटेंशन को चैलेंज ही नहीं कर सकता है। कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन गवर्नमेंट एक्शंस इवन इफ डिटेंशंस आर इलीगल, अनजस्ट, अनफेयर, फिर भी आपको कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा गवर्नमेंट से। फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ओनली इफ द गवर्नमेंट्स अलाउ देम ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। वो तभी फंडामेंटल राइट्स काम करेंगे अगर गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है, तो अनलेस वो फंडामेंटल राइट्स अलाउ ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस जो जजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, दिस वॉज हैविली क्रिटिसाइज, और लेटर इस जजमेंट को के.एस. पुत्तास्वामी जजमेंट से ओवर रूल कर दिया गया था, रीअफर्मिंग दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, मिलेंगे ही मिलेंगे इवन ड्यूरिंग दी इमरजेंसीज। तो लेटर दिस केस वाज ओवर रूल्ड। नेक्स्ट केस, अब यही नेक्स्ट केस हो जाएगा हमारा, दैट इज केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, रीअफर्म पर्सनल लिबर्टी एंड 21 एंड 22। केस ने क्वेश्चन किया वेदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट स्पेशली इन रिलेशन टू आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली बोला दैट राइट टू प्राइवेसी is a fundamental right under 14, 19 and 21, and this privacy includes all the personal choices, bodily integrity and data protection. Any law restricting privacy must meet the test of legality, necessity and proportionality, and it was held that ADM जबलपुर 1976 is overruled. इसको overrule कर दिया गया and expanded the interpretation of Article 21 and strengthened the Article 22 protections. Next is Article 23, that is prohibition of traffic in human beings. First case is People's Union for Democratic Rights versus Union of India 1982. The issue was that exploitation of construction workers. The case addressed that exploitation of workers at Asian Games construction sites in Delhi, जहाँ पे उनको मिनिमम वेजेस से भी कम प्रोवाइड कर रहे थे पेमेंट, एंड दे वर सब्जेक्ट टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। ये केस हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज इट अगेन। कि इशू ये हो गया कि इनको नॉन पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेजेस का, एंड दिस अमाउंट्स टू दी फोर्स्ड लेबर, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला दैट इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23। वॉयलेटिव कैसे है, क्योंकि फोर्स लेबर इंक्लूड्स इकोनॉमिक कोअर्शन, इट इज़ नॉट जस्ट दैट फिजिकल फोर्स, एंड पेइंग बिलो द मिनिमम वेजेस अमाउंट्स टू फोर्स लेबर विच इज अंडर द Article 23. There is state's duty to prevent labor exploitation and ensure that fair wages are given to the laborers. PIL को एक तरह से एक तरीका, एक जरिया बताया गया कि PIL के थ्रू आप इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हो, स्पेसिफिकली फॉर दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो दिस एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ forced labor and easier for citizens to seek justice through PIL. So this recognized economic exploitation also under the forced labor.
नेक्स्ट केस इज संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वेजेस बिलो मिनिमम लेवल टू फेमाइन वर्कर्स। मीन्स जो राजस्थान फेमाइन रिलीफ प्रोग्राम था, ये पेड लेबरर्स को लेस देन मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करता था, एंड क्वेश्चन वाज कि वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। The issue was whether state-run relief work could justify lower wages under Article 23। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट मिनिमम वेजेस अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट का काम है तो वो जस्टिफाइड है, अगर प्राइवेट काम है तो जस्टिफाइड नहीं है। नो, दिस मिनिमम वेजेस लॉज अप्लाई टू ऑल द वर्क, सो इंक्लूडिंग दीज स्टेट रन रिलीफ प्रोग्राम्स। सो इफ यू आर पेइंग बिलो मिनिमम वेजेस अमाउंट्स टू दी फोर्स लेबर, ये एक तरह का आपका फोर्स लेबर ही कहलाएगा, और फोर्स लेबर इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 23। तो इसीलिए हम इसको वॉयलेशन मानेंगे आर्टिकल 23 का। इकोनॉमिक हार्डशिप्स कैन नॉट जस्टिफाई वेज एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी के साथ कोई ऐसा पर्सन है जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, तो दिस डजंट मीन्स कि आप जस्टिफाई कर लोगे उसके साथ वेज एक्सप्लॉयटेशन करना। तो गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर फेयर वेजेस इवन इन रिलीफ वर्क। तो पेमेंट बिलो मिनिमम वेज इज अ फोर्स्ड लेबर, और यहाँ से इस केस ने वर्कर्स के राइट्स को जो अभी तक इग्नोर किया जा रहा था उसको एक तरह से बोला दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द नेम ऑफ पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट केस इन दिस इज नेक्स्ट इज नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1984। इस केस में रिहैबिलिटेशन की बात थी, तो स्टेट इन एक्शन ऑन बॉन्डेड लेबर के लिए क्वेश्चन था दैट अगर हम रिहैबिलिटेशन करते हैं बॉन्डेड लेबर्स का, तो क्वेश्चन वाज दिस कि मेरली रिलीजिंग देम वाज इनफ, और इफ द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू रिहैबिलिटेट देम अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे हेल्ड किया दैट फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेड लेबर इज मीनिंगलेस विदाउट रिहैबिलिटेशन। देखो, आपने बॉन्डेड लेबर से इनको फ्रीडम दे दी कि जो बंधुआ मजदूरी थी उससे तो इनको फ्रीडम मिल गई, मगर सिर्फ फ्रीडम दे देना उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उनको रिहैबिलिटेट नहीं करते हो। तो रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उनको सर्टेन लैंड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर कोई किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन फ्रीड लेबरर्स को, तभी तो वो आगे जाके अपनी लाइफ को दोबारा कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट स्टेट मस्ट एंश्योर रिहैबिलिटेशन। स्टेट मस्ट एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने रिलीज कर दिया लेबरर्स को, फ्री कर दिया तो द थिंग इज ओवर, you have to rehabilitate them also. Judicial activism is necessary to protect the rights of vulnerable vehicles. Judicial activism is necessary to protect the rights of vulnerable workers. So this expanded the meaning of protection under Article 23 क्योंकि it strengthened the labor rights, ensuring the abolition of bonded laborers, or it also included rehabilitation and reintegration of them into the society. Next is Article 24, prohibition of child labor. फर्स्ट केस इज MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। तो इशू क्या हुआ, चाइल्ड लेबर इन मैच फैक्ट्रीज। इशू क्या हुआ दैट चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन शिवकाशी फायरवर्क्स इंडस्ट्री। यहाँ पे की इशू ये था कि ये जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वेदर दिस वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स, एंड यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको प्रिवेंट करने में। तो यहाँ पे कोर्ट ने सीधा सीधा इसको बैन किया और रिहैबिलिटेशन के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉइंग चिल्ड्रंस इन हजार्डस फैक्ट्रीज वायलेट्स आर्टिकल 24। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 24 में अगर 14 ईयर्स से अगर कम एज का बच्चा है तो फिर वो हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेगा। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ के अंदर एजुकेशन ज़रूरी है, तो स्टेट ये भी इंश्योर करेगा कि उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला फॉर दीज चाइल्ड लेबरर्स।
स्ट्रिक्टली अप्लाई करने को बोला। देयर वॉज अ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का एक स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर दिया दैट इट मस्ट बी अप्लाइड properly, and employers must compensate affected children through a child लेबर रिहैबिलिटेशन फंड। ये जो फंड होता है इससे एम्प्लॉयर्स को बोला कि दैट यू हैव टू कंपनसेट दीज अफेक्टेड चिल्ड्रन जो अभी तक आपकी मैच फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सो दिस केस बेसिकली स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 24 बाय री इन्फोर्सिंग द बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन hazardous industry, and also made education a priority for these affected children. So this case was very important under this article 24. नेक्स्ट अब इसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्डेड लेबर वाला इशू था इसमें चाइल्ड भी इंक्लूडेड थे, तो बॉन्डेड चाइल्ड लेबर इशू भी हो गया था। एंड फ्री बॉन्डेड लेबरर्स वर्किंग इन इनह्यूमन कंडीशन इन स्टोन क्वेरीज, दिस PIL was filed, and the issue was regarding the state had a duty to rehabilitate these bonded laborers under article 21 and other labor laws. तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड तो वही चीज़ें की थी कि इनको स्टेट को आइडेंटिफाई करके उनको रिलीज कराना है, एंड देन दे हैव ऑल्सो हैव टू रिहैबिलिटेट देम। सो ये जो आर्टिकल 24 है दैट मस्ट बी रेड विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो एक तरह से एक्सपेंशन था जुडिशियल एक्टिविज्म का इन लेबर राइट्स, और इंश्योर किया गया था कि दैट यू आर फ्रीइंग द बॉन्डेड लेबरर्स इंक्लूड्स द प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज लेबरर्स एज वेल। Last is laborers working on Salal Hydro Project versus State of Jammu and Kashmir 1984. सेम इशू दैट यूज ऑफ चाइल्ड लेबर इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया दैट कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स जो थे जो कि उस टाइम पे सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनको दे वर एंटाइटल्ड टू मिनिमम वेजेस एंड बेसिक वेलफेयर अंडर लेबर लॉज। सो दिस issue was whether government projects had to follow labor laws strictly or not। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो या कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो या कुछ भी हो, all must ensure minimum wages and proper working conditions। और अगर यहाँ पे बच्चे are also included in these child labor, तो वो use of child labor in government projects is not proper as article 24 prohibits it। तो directly government directed government to comply with article 24। तो चाहे government projects हो या कैसे भी projects हो, आपको इन articles को properly apply करना है। Employers including the state cannot escape the responsibility of hiring contract labor। और जो proper आपके labor laws हैं जैसे कि minimum wages act 1948, आप इसको अप्लाई करेंगे टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड देम विद द राइट्स दे आर एंटाइटल्ड फॉर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैड टू फॉलो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस वाज गिवन अंडर दिस केस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। First case is Bijoy Emmanuel versus State of Kerala. Expulsion of students for refusing to sing national anthem on religious grounds. इशू क्या हुआ था कि यहाँ पे 3 स्कूल बच्चे थे एंड who were Jehovah's Witnesses and Jehovah's को फॉलो करते थे, रिफ्यूजिंग टू सिंग दी नेशनल एंथम ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। और इन्होंने बोला कि हमारा ऐसा रिलीजियस बिलीफ है कि हमें ये गाना नहीं गाना है। तो इशू ये आया कि वेदर उनको निकाल दिया गया स्कूल से। तो इशू ये आया कि एक्सपेलिंग देम फ्रॉम दिस रिफ्यूजल वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a एंड 25। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड स्टूडेंट्स बिलीफ मस्ट बी रिस्पेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू आर फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू सिंग द नेशनल एंथम and this violates their right to freedom of religion under article 25 if अगर उनके beliefs contradict करते हैं singing के लिए। freedom of speech under article 91A includes right to remain silent। अगर आप चुप भी हैं तो freedom of speech उसको
क्या करता है, राइट प्रोवाइड करता है। ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में अंडर आर्टिकल 19 पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट हैड नॉट शोन डिसरिस्पेक्ट टू एंथम, उन्होंने सिर्फ सिंगिंग करने से मना किया था। दे वर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ वो अपना रिलीजियस बिलीफ को पीसफुली एक्सरसाइज कर रहे थे कि वो गाएंगे नहीं, शांति से खड़े रहेंगे अपनी असेंबली में, बट उनको एक्सपेल करना इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। तो यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम्स और राइट टू साइलेंट डिसेंट इन इंडिया वॉज अपहेल्ड बाय दिस केस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम को एक तरह से प्रोटेक्शन मिली थी, और एम्बिट ऑफ ये नेशनल एंथम का कि उसने नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया है एंड ऑल, दैट वाज नॉट सीन। उस साइलेंट होके आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर किसी और कोई और एक्शन होता है इसके अलावा तो वी कैन से कि डिसरिस्पेक्ट हुआ है, बट अगर किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे हम उसको वायलेशन नहीं मानेंगे। नेक्स्ट केस इज कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स वर्सेस श्री लक्ष्मींद्रा तीर्थ स्वयंवर 1954। इस केस में क्या हुआ, दैट वेदर स्टेट कैन रेगुलेट टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट। इस केस में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951 को चैलेंज किया गया। चैलेंज क्यों किया गया, बिकॉज दिस एक्ट रेगुलेटेड टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वॉयलेटिव हो जाएगा फंडामेंटल राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर आर्टिकल 26। तो की इशू क्या था, स्टेट की इंटरफेरेंस इन टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर प्रोटेक्टेड। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब आर्टिकल 26 ग्रांट कर रहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस को द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। तो स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है, वो एक तरह से रेगुलेट कर सकता है, बट सेक्युलर एस्पेक्ट होना चाहिए, एंड इट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस रिचुअल्स और बिलीव्स, क्योंकि सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहा है हमारा नेशन, तो ये सर्टेन रिलीजन के प्रैक्टिसेस या उनकी बिलीव्स पे इंटरफेयर करना इज नॉट अलाउड। दिस लॉ वॉज पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्सेसिवली इंटरफेरेंस हो रहा था किसी भी रिलीजियस ऑटोनॉमी के साथ, तो कुछ जो पार्ट था डेट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट this case law defined the limits of state to control over religious institutions, and it also distinguished कि secular और religious autonomy में difference क्या होता है। तो doctrine of essential practices was introduced कि state सिर्फ एक certain limit तक ही control लगा सकता है on religious institutions, and it cannot participate in any kind of religious rituals or ceremonies. Next is Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala 2018. यहाँ पे the question was entry of women in सबरीमाला टेम्पल। बहुत फेमस केस है, और इस केस में चैलेंज किया गया था बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन एज्ड 10 to 50 इनटू सबरीमाला टेम्पल, और आर्ग्यू क्या किया दैट इट इज द वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 25। टेम्पल अथॉरिटीज़ ने ये आर्ग्यू किया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड द सेलिब्रेट नेचर ऑफ लॉर्ड अयप्पा। हेल्ड क्या हुआ, दैट 4:1 मेजॉरिटी से ये हेल्ड हुआ दैट दिस बैन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया, क्योंकि आप विमेन को बार कर रहे हो फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल, और ये क्या है, जेंडर इक्वालिटी को वॉयलेट कर रहा है अंडर आर्टिकल 14। or this practice is not an essential religious practice, and that is protected under article 25. Religious freedoms cannot override the women's fundamental rights. तो women के fundamental rights को आप religious practice के अंदर override नहीं करा सकते। तो this upheld the gender equality in religious practices, and it remains controversial because बहुत सारे legal और social debates चले थे, तो यहाँ पे equality को upheld किया गया था religious practice से, तो यहाँ पे this was held as unconstitutional. Next is Article 26. Article 26, that is freedom to manage religious affairs. Ratilal Panachand Gandhi versus State of Bombay 1954. The issue was state interference in religious institutions. इस केस में इशू क्या आया कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 का था,
इसने रेगुलेट किया था रिलीजियस एंटॉयमेंट्स एंड टेम्पल मैनेजमेंट को लेके. सो की इशू वाज दिस, दैट इज एक्ट इज वायलेटिंग आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स. तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास ये राइट है टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स अंडर आर्टिकल 26, बट स्टेट कैन रेगुलेट देयर सेक्युलर एक्टिविटीज. जैसे अगर मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह है अगर उस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, तो स्टेट कैन रेगुलेट दीज सेक्युलर एक्टिविटीज. वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करने लगा है, बट इट इज जस्ट maintaining the financial assistance जो दे रहा है, that is a kind of secular activity and state can obviously do that. So the government cannot interfere in the religious rituals, beliefs or any kind of practices, but अगर किसी management की बात है तो वो secular management कर सकता है. So this act वही पुराने केस की तरह दैट सम पार्ट ऑफ इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि एक्सेसिव इंटरफेरेंस को रोकना था, एंड द एक्ट वाज पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि एक्सेसिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी भी स्टेट का. सो दिस क्लैरिफाइड द ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस. इट स्ट्रेंथेंड द रिलीजियस ऑटोनॉमी, जबकि उसने स्टेट को अलाउ किया था टू रेगुलेट अंडर द सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. Next is SP Mittal versus Union of India 1983. Issue was whether Auroville was a religious institution or not. टेक ओवर ऑफ ऑरोविल मतलब एक तरह की स्पिरिचुअल टाउनशिप मतलब होता है ऑरोविल का, बाय गवर्नमेंट थ्रू ऑरोविल इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1980. सो दिस केस चैलेंज द सेम. द की इशू वाज दैट कि टेकिंग ओवर दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26. सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ऑरोविल इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन. क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन है. ये किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा है, ये एक स्पिरिचुअलिटी है जिसको फॉलो करता है. फिलोसॉफिकल मतलब एक सोच को फॉलो करता है. सो ये उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है. क्योंकि ये प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है तो स्टेट कैन रेगुलेट इट. So the act was constitutional in nature and it did not violate any kind of religious freedom. तो यहाँ पे test for religious denomination was defined. मतलब अगर आपको किसी स्टेट के एक्शन को देखना है कि वेदर दिस स्टेट का इंटरफेरेंस क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा हो रहा है, तो पहले ये देखो कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है. ऐसा तो नहीं कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन में फॉल ही नहीं कर रहा है. तो फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक किससे होगा? टेस्ट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन से, कि वेदर उसके जो उसका पूरा इंस्टीट्यूशन है वो काम क्या कर रहा है, दैट इज़ प्योरली रिलीजियस इन नेचर और इट इज़ स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So this case clarified the distinction between the religious and philosophical institutions, and it also limited the scope of Article 26. Next comes Article 27, that is freedom from taxation for promotion of religion. तो केस आएगा पहला श्री जगन्नाथ रामानुज दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1954. इशू ये था, द केस चैलेंज द स्टेट्स पावर टू रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी. तो मेन इशू क्या था? लेवाई ऑफ फीस ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. इस केस ने चैलेंज किया कि वेदर स्टेट कंट्रोल ओवर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 26 और नॉट. कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट हेल्ड दैट रेगुलेटरी फी इज अलाउड, नो टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन. कोर्ट ने बोला कि स्टेट कैन रेगुलेट सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट जैसे कि फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो स्टेट कैन रेगुलेट दीज सेकुलर एस्पेक्ट्स. ये पिछले केसेस में भी यही सेम चीज़ आ रही है. अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर्स की, तो दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड दैट इज टोटली वैलिड. टेम्पल मैनेजमेंट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट अंडर आर्टिकल 26, और क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में हम उसको रेगुलेट करते हैं तो दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होंगे ही होंगे एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज वन ऑफ दैट. तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या आया? दैट इट क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 27 बाय रीअफर्मिंग दैट स्टेट power over secular aspect of religious institutions while protecting religious autonomy in spiritual matters. तो ये ज़रूरी है
कि जो स्टेट है वो इस रिलीजियस ऑटोनॉमी और स्पिरिचुअल मैटर्स को प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है, बट वो अपने सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अपनी पावर को यूज भी कर सकता है। नेक्स्ट आएगा आपका आर्टिकल 28 विच इज फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन 2002. So issue was regarding teaching value based education in school. तो केस आया कि अगर मान लो इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम होता है अंडर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE, तो यहाँ पे आर्ग्यू ये चला कि वेदर इट वायलेटेड आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 25। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि परमिसिबल इफ नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन। मतलब क्या हुआ इशू का कि अगर मान लो हम अपने स्कूल के सिलेबस में रिलीजियस एजुकेशन को ऐड कर देते हैं अंडर दी NCFSE, तो क्या ये वायलेट करेगा आर्टिकल 28 को और 25 को। कोर्ट ने बोला कि मॉरल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है तो दैट इज परमिसिबल, लेकिन वो तब तक रहेगी जब तक इट इज सेक्युलर, और वो तब नहीं रहेगी व्हेन इट प्रमोट्स अ स्पेसिफिक रिलीजन। जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं अगर एक लाइन लूँ दैट इक्वालिटी, कि सब बराबर हैं। अगर हम कोई भी रिलीजन उठा के देख लें तो हर रिलीजन कहीं ना कहीं ये तो बोलता है कि सभी लोग बराबर हैं, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया विच इज़ सेक्युलर। बट यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि कौन से रिलीजन में बोला गया है कि हमारे रिलीजन में बोला गया है कि एवरी वन इज इक्वल तो हमारा रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है, तो ऐसा नहीं है। जो सेक्युलर वाला पार्ट, अगर आपका जो मॉरल बेस्ड या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो आप दे रहे हो बच्चों को, इफ इट इज सेकुलर इन नेचर तो इट्स ओके, बट वो किसी रिलीजन को प्रमोट करती हुई नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट रन एजुकेशन, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इट डज नॉट बार एजुकेशन अबाउट रिलीजन्स। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस। वो ये कहता है कि आप किसी भी तरह की जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप किसी स्टेट रन इंस्टीट्यूशन में नहीं लेके आओगे, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट रन कर रहा हो। बट वो एजुकेशन पे बार नहीं लगाता है, वो बार नहीं लगा रहा है, वो बैन नहीं लगा रहा है। इफ़ यू आर गिविंग एजुकेशन अबाउट रिलीजन, एजुकेशन पे कोई बार नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंक्लूड रिलीजियस टीचिंग्स। गवर्नमेंट के जो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप रिलीजियस टीचिंग्स को इंक्लूड कर सकते हो, बट दोज टीचिंग्स मस्ट बी न्यूट्रल एंड ओनली फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन या फिर एजुकेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। डिफरेंशिएटेड द मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, और दिस केस ऑल्सो क्लैरिफाइड कि एजुकेशन अबाउट रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड इज अलाउड इन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि हमको एनिमल्स के साथ एक फेयर तरह से पेश आना चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट देम, और हमको उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक तरह का ऐसी चीज़ है विच इज़ मॉरल इन नेचर। और हम अगर ये कहते हैं कि हमारे, और ऐसा लगभग सभी रिलीजन में ही बोलते होंगे कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्शन देनी है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। और ये हर रिलीजन में ऐसे ही इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। बट अगर ये क्या हो गया, एक तरह से एजुकेशन हो गई कि आप रिलीजन के बारे में एजुकेशन दे रहे हैं। अब हम अगर बोलते हैं कि मान लो एक एक्स रिलीजन है, इस एक्स रिलीजन में ये बताया गया है दैट एनिमल्स आर लाइक फ्रेंड टू अस, और एनिमल्स को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए एंड दे मस्ट ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक तरह का आपने मॉरल एजुकेशन दी, दो ये किसी रिलीजन के थ्रू आया है। दिस एजुकेशन इज अबाउट रिलीजन, कि ये जो रिलीजन है ये इस तरह की चीज़ आगे फर्दर आपको
बताता है कि एनिमल्स को ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन दो, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप एक्स रिलीजन के हो तो ही ये फॉलो करना है, एंड एक्स रिलीजन इज गुड बिकॉज वहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, और ये इस केस में डिफाइन किया गया था कि आप स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन रिलीजन के बारे में दे सकते हो कि लाइक दिस एक्स इज रिलीजन, इसमें ये फॉलोइंग चीज़ें बताई गई हैं, ये वाई रिलीजन है, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, ये जेड रिलीजन है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये एजुकेशन देना इज़ अलाउड, बट किसी एक रिलीजन को उठा के उससे उसके इंस्ट्रक्शंस को देना इज़ नॉट अलाउड। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज आर्टिकल 29, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसमें केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन। यहाँ पे आर्टिकल 29 के इन्फ्रिंजमेंट को लेके था, दैट इशू आया कम्युनल रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। केस वॉज कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया था मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में इन मद्रास, जो कि अभी का तमिलनाडु है, और इसने ये इशू लेके आया दैट इट वायलेटेड आर्टिकल 29(2) विच एंश्योर्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट येस इट वायलेटेड आर्टिकल 29(2) and this was struck down. This caste based reservation in government college, as it was violative of article 29(2), so because they were discriminating against merit based admissions and allowing the caste based reservation, so this जो आपका एक पॉलिसी आई, दिस वॉज struck down by the court. The only exception for reservation is under Article 15(4), which was later added through the first Constitutional Amendment Act 1951, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे स्टेट को अलाउ किया गया था to take the affirmative action फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसी की वजह से हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये हम पहले भी केस में, ये पहले केस हम रिफर कर चुके हैं। Next is Article 30, rights of minorities to establish institutions. First case is St. Stephen's College versus University of Delhi 1992। तो यहाँ पे इशू क्या आया, दैट सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, और चैलेंज हुआ दैट द दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्टिव दैट रिक्वायर्ड ऑल एफिलिएटेड कॉलेजेस टू फॉलो अ यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसेस, आर्ग्यूइंग दैट इट वायलेटेड आर्टिकल 30। क्यों, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस को एक यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, क्योंकि ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, तो इसने बोला कि नो, my article 30 is violated as I have the right to establish institution। तो यहाँ पे article 31 was violated, ऐसा इनका इशू आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट 50% ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इज अलाउड, यानी 50% रिजर्वेशन इज अलाउड। तो द इंस्टीट्यूट कैन रिजर्व 50% ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स बट मस्ट फॉलो फेयर एडमिशन प्रोसीजर्स। आप अलाउ कर दे 50% रिजर्वेशन, बट बाकी का जो 50% बचा है दैट must follow the fair admission procedures। तो यहाँ पे state regulations can apply but they should not destroy the institution's minority character, क्योंकि ये minority का एक तरह से institution था, तो इसके पास rights हैं अपने institution को establish करने के और उसका further administration करने के लिए। तो यहाँ पे allow कर दिया कि ठीक है 50% आप रिजर्वेशन दे दो और 50% आप फेयर प्रोसेस रखो, और 50% जो बचा हुआ है उसमें एडमिशन प्रोसीजर एज इट इज़ रखो। तो दिस बैलेंस द माइनॉरिटी राइट्स, और जो मेरिट बेस्ड एडमिशन थे उनको भी इन्होंने इक्वल रखा, सेम पेस पे रखा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्टेट जो है वो अपने रेगुलेशंस को अप्लाई कर सकता है, बट स्टेट बस डिस्ट्रॉय ना करे कि वो इंस्टीट्यूशन, क्योंकि माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो उसकी कैरेक्टर को बस डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट इज TMA Pai फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। तो ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वॉज द इशू, यानी कि दिस केस डेल्ट विद द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन क्या आया,
that the state could regulate admissions, fees and administration of such institutions. तो held क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, that state can regulate standards not interfere in the administration. Supreme Court ने बोला that private and minority institutions have the right to establish and administer their institutions under Article 30 and under Article 19(1)(g फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. सो यहाँ पे गवर्नमेंट बोली दैट इट कैन रेगुलेट एडमिशन प्रोसीजर्स. वो फीस स्ट्रक्चर भी बता सकता है जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ओवर बिजनेस करने की वजह से ओवर फीस लगने लगे. पर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट का या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. तो स्टेट कैन रेगुलेट स्टैंडर्ड्स बट इट शुड नॉट इंटरफेयर इन दी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. Unaided minority institutions have greater economy compared to aided institutions. देखो, अगर स्टेट एडेड है तो स्टेट तो स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करेगा, स्टेट अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी लेके आएगा. बट कोर्ट ने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मना किया, इंटरफेरेंस के लिए मना किया. बट जहाँ पे अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात है तो उनका तो ग्रेटर इकोनॉमी होगी क्योंकि वो अनएडेड हैं, स्टेट से कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं. बट देन टू दे कैन बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्टेट रेगुलेशंस. अगर स्टेट कोई ऐसी रेगुलेशंस लगाता है जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या उसको प्रॉपर चलाने के लिए, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कैन ऑल्सो अप्लाई दीज रेगुलेशंस. तो ये एक तरह की क्लियर गाइडलाइंस सेट हो गई ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और इससे सब्सिक्वेंट एजुकेशनल पॉलिसीज जो इंडिया में है उनको बहुत फ़ायदा मिला. सो दिस वॉज द लैंडमार्क जजमेंट डिफाइनिंग द माइनॉरिटी राइट्स. Now comes Article 32, that is right to constitutional remedies. So first case is बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984. तो ये केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दी बॉन्डेड लेबरर्स, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट दिस इज़ परमिसिबल अंडर आर्टिकल 32 क्योंकि ये वॉयलेट करता है 21 और 23 को. तो आप डायरेक्टली PIL फाइल करके आप अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन ले सकते हो. सो दिस इज़ ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट इज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो 1981 इशू वॉज वेदर PILs कैन बी एंटरटेन्ड बाय कोर्ट्स. This case is also known as first judge case. इस केस में these deals with the judicial appointments और independence of the judiciary को लेके. की इशू ये था कि president had absolute discretion in appointing and transferring of judges. So whether consultation with CJI of India is binding, or CJI means Chief Justice of India, CJI was binding or not. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला that प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय CJI's रिकमेंडेशन. क्यों बाउंड नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स. एग्जीक्यूटिव का सिग्निफिकेंट रोल होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, बट इट मस्ट एक्ट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव का दो देयर इज प्रॉपर रोल, बट जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ज़रूरी है कि आप CJI से या जो जुडिशरी है उससे रिकमेंड करके ही आप फर्दर उसको अपॉइंट करो या फिर ट्रांसफ़र करो. PIL कैन बी यूज टू चैलेंज दीज गवर्नमेंट डिसीजंस अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट. अगर मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट को डिस्टर्ब करती हैं तो वहाँ पे PIL को फाइल किया जा सकता है. तो येस, PIL कैन बी एंटरटेन्ड बाय कोर्ट्स. सो द आंसर वुड बी येस, एंड इट ब्रॉडन द लोकस स्टैंडाई बिकॉज वो PIL जो थी उसको एक तरह का उसका स्कोप बढ़ा दिया गया था, लोकस स्टैंडाई भी उसका ब्रॉडर हो गया था. यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा वीक किया गया था क्योंकि क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो जो ये रिकमेंड कर रहे हैं CJI उसके रिकमेंडेशंस के लिए बाउंड नहीं थे. तो देयर इज़ फाउंडेशन ऑफ PIL ज्यूरिस्प्रूडेंस जो इस केस के बाद आया था, पर बाद में फर्स्ट जज केस को सेकेंड एंड थर्ड जज केसेस जो आए थे 1993 और 1998 में, जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, दिस केस वाज ओवरटर्न्ड बाय दीज टू केसेस. नेक्स्ट आते हैं रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. बैन ऑन जर्नल वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर्ड.
held that Article 32 can be directly invoked for violation of these fundamental rights. तो यानी अगर किसी भी petitioner का Article 19 infringe हो रहा है fundamental right का, तो petitioner can directly approach to the Supreme Court under Article 32. तो 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है, तो वो फंडामेंटल राइट आपसे कोई नहीं ले सकता, और आप फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस करोगे अगर आपका कोई दूसरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। सो दिस आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हो, तो इट प्रोवाइड्स अ की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। नेक्स्ट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। ये जो इशू था ये ऐसा था कि सुनील बत्रा इनकी ये एक प्रिजनर थे, जल्दी इनको आके सज़ा होने वाली थी और डेथ सेंटेंस था इनका, एंड चैलेंज किया इन्होंने इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। इट वाज पर्टिकुलरली द यूज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड कस्टोडियल टॉर्चर, एंड इट आल्सो आर्ग्यूड दैट इट वायलेटेड आर्टिकल 21। इट वॉज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये बताया दैट प्रिजनर्स रिटेन फंडामेंटल राइट्स, मतलब उनकी जो डिग्निटी है, उनके पास जो उनकी एक तरह से जो उनका प्रोटेक्शन है उनकी लाइफ को लेके, वो इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम टॉर्चर इवन इन दी कस्टडी। ऐसा नहीं है कस्टडी में है तो फिर दे डोंट हैव राइट टू लाइफ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं आप परमानेंट उन पर टॉर्चर करते जाओगे क्योंकि वो कस्टडी में है। सो दिस वॉज नॉट अलाउड। इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट solitary confinement should not be imposed arbitrarily and it must be in accordance with proper legal procedures. कोर्ट को ये पावर है that they can intervene in prison conditions through PILs, so that means it expanded the scope of article 32। हुआ क्या था यहाँ पे, इन्होंने एक लेटर लिखा था and that letter was treated as writ petition under article 32। तो उस वजह से this case expanded article 21 का scope और 32 में इन्होंने अप्लाई किया था, and it also ensures that prisoners rights are protected from custodial torture। नेक्स्ट इज शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शीला बारसे एक तरह की 1983 का केस है। शीला बारसे वाज अ जर्नलिस्ट एंड फाइल्ड अ PIL हाईलाइटिंग द इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन प्रिजनर्स इन पुलिस कस्टडी। तो कस्टोडियल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिजनर्स वाज द मेन इशू। यहाँ पे द की इशू वाज वेदर कस्टोडियल वायलेंस एंड लैक ऑफ लीगल एड फॉर वुमेन प्रिजनर्स वायलेटेड आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 39A। 39A आ गया DPSP, दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि ये जो गाइडलाइंस इशू करी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला दैट वुमेन प्रिजनर्स मस्ट बी केप्ट इन सेपरेट लॉकअप्स एंड इंटरोगेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल ऑफिसर्स। जब कोई फीमेल ऑफिसर होगी तभी उनका इंट्रोगेशन हो सकता है। लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रिजनर्स एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। जल्दी से जल्दी किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से उनकी बात करवानी है, लीगल एड प्रोवाइड करनी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मस्ट विजिट जेल्स रेगुलरली टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मजिस्ट्रेट्स को कोर्ट ने बोला दैट दे मस्ट विजिट, रोज उन्हें रेगुलर बेसिस पे जेल जाना है एंड दे हैव टू सी वेदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज देयर और नॉट। दे हैव टू इंश्योर दैट कि इस तरह का वायलेशन वहाँ पे ना हो। तो इससे क्या हुआ, आर्टिकल 32 को यूज़ किया गया टू प्रोटेक्ट द प्रिजनर्स राइट्स और उसको प्रोटेक्शन मिले, एंड ऑल्सो इशूड गाइडलाइंस ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन प्रिजनर्स। सो इट स्ट्रेंथन द प्रिजनर्स राइट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड एंश्योर्ड देयर बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। नेक्स्ट इज विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1998 का केस है एंड इशू वाज रिगार्डिंग हवाला स्कैम एंड CBI इन्वेस्टिगेशन। केस ये आया कि हवाला स्कैम जो है वेयर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स पर एक्यूज ऑफ टेकिंग ब्राइब्स थ्रू सीक्रेट फॉरेन ट्रांजैक्शन। तो ये जो इशू है वेदर द CBI एंड अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली और वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर। तो क्या ये सही में इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉपरली या इंडिपेंडेंटली, या फिर इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया दैट डायरेक्शंस इशूड फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो ये CBI और जो भी हमारी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, दीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पॉलिटिकल प्रेशर। सबसे फ्री होनी चाहिए
जो भी अपॉइंटमेंट होता है सीबीआई डायरेक्टर का, ये शुड फॉलो फिक्स्ड टेन्योर एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। इनका कुछ टेन्योर जो जितने भी पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है दैट शुड बी फिक्स्ड, और हमेशा जो सिलेक्शन है दैट शुड बी मेरिट बेस्ड। जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, इसको सुपरवाइज करना चाहिए सम एंटी करप्शन एजेंसीज जो हैं उनको, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। सो जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। सो दिस केस लेड द मेजर रिफॉर्म्स इन इंडिया रिगार्डिंग एंटी करप्शन फ्रेमवर्क। तो अगर को करप्शन वाला जो केस आता है तो एंटी करप्शन अगर आएगा कि किस केस में ये चीज़ आई थी, तो एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को लेके आया था एंड एंश्योर द ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक सीबीआई। नेक्स्ट इज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। यहाँ पे की इशू था डिलेड ट्रायल्स फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। PIL फाइल की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन बिहार, और ये दिस वाज रिगार्डिंग कि दे हैड बीन लैंग्विशिंग इन जेल फॉर ईयर्स विदाउट ट्रायल ड्यू टू डिले इन द जुडिशियल प्रोसेस। सो द की इशू वाज डिनायल ऑफ स्पीडी ट्रायल वायलेटेड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अंडर आर्टिकल 21 एंड एनफोर्स थ्रू आर्टिकल 32। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू रिलीज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स who had been detained longer than the maximum sentence for their offense। कई बार क्या होता था, पता चले जो ऑफेंस किया है उसकी सज़ा है 2 साल, मैक्सिमम उसकी सज़ा है 2 साल, और क्योंकि उनका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ और उनको कस्टडी में भेज दिया गया, अब ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ है एंड दे आर इन जेल फॉर 3 years, तो मैक्सिमम सज़ा तो 2 ही साल की थी और वो काट 3 साल चुके हैं। तो इस वजह से ज़रूरी था इस चीज़ को एड्रेस करना। फ्री लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पुअर अंडर आर्टिकल 39A। DPSP हमारा कहता है कि हमें लीगल एड प्रोवाइड करना है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं, लोग पुअर हैं, दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लीगल हेल्प, तो जिस वजह से एक तो डिले है ही, वैसे भी देर इज़ अ जुडिशियल डिले, और साथ के साथ ये चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, तो डिले होते होते वो एक और चेरी ऑन द केक की तरह काम करता है कि डिले हो ही रहा था और डिले हो गया, तो पता चला जो ऑफेंस की सज़ा मैक्सिमम उनको जो सज़ा हो सकती थी उससे डबल सज़ा वो काट चुके हैं जेल में विदाउट एनी ट्रायल। तो ये तो एक तरह का इन्फ्रिंजमेंट हो गया हमारे आर्टिकल 21 का, एंड दिस नीड्स टू बी इंश्योर्ड। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 को यूज़ करके पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर किया गया, और दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म फॉर प्रिजनर्स राइट, बिकॉज मेजर रिफॉर्म्स आए थे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इंक्लूडिंग द स्पीडियर ट्रायल्स एंड टू प्रोवाइड देम द बेटर लीगल एड। नाउ नेक्स्ट इज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। यहाँ पे था डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड वाज द इशू। मतलब दिस केस चैलेंज द इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस। ये आर्ग्यू था दैट वोटर्स हैड द राइट टू नो द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स and financial details of the candidates before voting, or this issue was whether the right to information about candidates is covered under article 19(1)(a) freedom of speech and expression or not। तो supreme court बोले that yes, voters have right to know and this is enforceable under article 32। supreme court said that voters have the right to know about the candidates criminal records, assets and liabilities through article 19(1)(a)। They must know, they have the right to know। The election commission must ensure that candidates disclose this information before elections। पहले वो फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है, सो वहाँ पे अपनी ट्रू इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। दिस इज़ टू बी इंश्योर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन की जो कैंडिडेट्स हैं वो सही इन्फॉर्मेशन भरते हैं। अगर मान लो सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है तो फिर वो काम फिर इलेक्शन कमीशन का है कि वो कैसे उसकी उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करें। थर्ड इज इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी इज इसेंशियल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये ज़रूरी है कि अगर आपको फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने हैं तो ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये काम करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस केस के थ्रू इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथ मिली
That means कि it strengthened the democracy by making elections more transparent and ensured that voters had access to key information about the candidates. तो अगर ये चीज़ infringe होती है तो person can go through article 32 और 32 के थ्रू वो अपने इस right को proper enforce करा सकता है. So these were all the case laws from article 12 टू आर्टिकल 32 जो कि इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं. और जिस भी तरह का क्वेश्चन आता है जिस भी आर्टिकल को फोकस करते हुए यू कैन मेंशन एनी ऑफ दीज केस लॉज और इश्यूज क्या थे, हेल्ड क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या था उस इस केस के बाद, ये सब कुछ इस स्लाइड में मेंशन्ड है. तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट वुड बी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लीगल एड, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट. तो इन आगे के 3 टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे. अलग अलग वीडियोस के थ्रू हम उसको इन डीप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आते हैं और कैसे हमें इनके आंसर्स को फ्रेम आउट करना है. सो दिस वाज the video regarding the case laws of fundamental rights. Thank you for watching the video and I hope this would help you in your exams, whether it is any kind of civil service exam or it is any academic exam. So go for it, prepare well. Thank you so much for watching. See you in the next video.